Hello friends, welcome back to our channel Crave Video. Like, share and subscribe to our channel if you are new and press the bell icon to never miss any update. Thank you. Motivation in learning. Already we have covered the transfer of learning, theories of learning, and the next part is about motivation and its motivation types. We will cover today motivation types, then its relationship with learning. So let us move forward and understand what does motivation means. As we all know the word what does motivation means, क्या होता है मोटिवेशन जो एक करने के लिए कुछ काम करने के लिए वी नीड सम काइंड ऑफ एनकरेजमेंट दैट कैन बी called as a motivation process. So motivation के लिए different definitions have been given. Let us see first definitions. Leahy in 1995 what he had told that motivation is defined as an inspiration that propels someone into an action. Motivation क्या होता है which inspire a person inspire a person to do some kind of activity, or we can say to do a actions. Inspiring to do a actions can be called as a motivation. कुछ भी काम करने के लिए जो एक इंस्पिरेशन मिलता है उसी को एक्शन करने के लिए जो इंस्पिरेशन मिलता है दैट कैन वी कॉल्ड एज अ मोटिवेशन. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो द इंटरनल स्टेट और कंडीशन, जो कंडीशन एक ऐसा कंडीशन जो हमारे अंदर क्या पैदा करता है विच गिव्स अस अ डायरेक्शन टू आवर थॉट प्रोसेस, टू आवर फीलिंग एंड एक्शंस. मींस मोटिवेशन अगर किसी ने आपको मोटिवेट किया है या फिर इन एजुकेशन पर्सपेक्टिव हो या फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव में, इट क्लियर्स आवर माइंड इन अ स्पेसिफिक वे. एक रास्ता दिखाता है, क्लियर वे में दिखाता है, सो दैट वी थॉट प्रोसेस, इट डेवलप द थॉट प्रोसेस, फीलिंग एंड द एक्शन की क्या करना है, उस सेकंड स्टेप क्या होगा. तो ये सब कुछ हम लोग किस तरह से कर एक स्टूडेंट में भी ला सकते हैं. सो उसी चीज को हम मोटिवेशन बोलते हैं. Apart from that, another definition given by Oledley, who had in 1998, he have given that motivation is a process by which the learner's internal energies are directed towards various goal objectives in his environment. Means motivation किस में डायरेक्ट करता है. if you are having some goal, to achieve that goal motivation is needed. So motivation is the internal is a process which internal energies, जो energy provide करता है internally or externally to do or to achieve that certain goals or aim according to him. Apart from that, the other definitions which is given by Maslow, he was also a psychologist, so he believed that motivation leads to growth and development. Yes, already we learned this one, that motivations helps us to take different steps. Step by step process can be called as a motivation. So according to Maslow also, motivation is something जो हमको growth and development में help करता है. So that, और वो किसको लीड करता है, it is dependent on the need. It is on the basis of the need. Satisfaction is the most important sole factor underlining motivation. As Maslow ने different theory भी Maslow ने motivation में theory भी दिया है, जो उन्होंने क्या बोला था कि need, according to need and satisfaction, he had divided the motivation process. ये motivation जो होता है वो process हमारे इंसानों का need and satisfaction में depend करता है. So according to his definition, he have given importance that कि जो भी growth and development of a person is directed by the need and satisfaction of, or different factors affect, or different factors lead in the need and satisfactions, which is directly linked up with the motivation process according to him. Apart from that, Maslow further explained that man is perpetually in needs, and that the resources to satisfy those needs are limited. So as I have already told कि Maslow ने needs and satisfaction के basis में motivation theory को दिया. Different satisfaction में जैसे कि satisfaction के basis में उन्होंने divide किया है motivation. So different needs and satisfaction के basis में उन्होंने motivation को link किया है. तो उसके बाद देखते हैं different types of motivation. Only there are two types of the motivation has been divided, which is it can be both internally or externally driven. Means motivation has been divided into two types. One is intrinsic motivation on the basis of internally, and external motivation which is based on the externally driven factors. So on the basis of these two driven factors, it has been divided into two types. First one is intrinsic motivation. Intrinsic motivation, for example, this is a human being. If we take example, तो एक इंसान के अंदर से जो आता है, जो एक नीड्स, उस नीड्स को या फिर उस गोल को अचीव करने के लिए जो उसको मोटिवेशन खुद से मिलता है, दैट वी कैन कंसिडर एज एन इंट्रिंसिक मोटिवेशन. एंड एक्सट्रिंसिक हम लोग
उसमें देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द इंट्रिंसिक वन. इंट्रिंसिक इज द इंटरनल फोर्स, मीन्स internal force or motive which the individual will which propels him her into emitting certain behavior. It is the behavior जो internally आता है, खुद से जो आता है अंदर से, कि आपको अगर कुछ सीखना है तो you have to there should be some kind of motivation in you so that you can complete that course or whatever you are learning, you can complete that process. So that will be your इंट्रिंसिक मोटिवेशन. जैसे कि मुझे पास करना है एक सब्जेक्ट को, मैं आज पढ़ूंगा तो उसको मैं किस तरह से पढ़ूंगा, मुझे ये पूरा अच्छी तरह से लर्न करना है, मुझे एपीएससी देना है, यूपीएससी एग्जाम देना है. दैट इफ वो जैसे कि वो अंदर से जब आएगा, internal force will allow you to achieve that success. That motivation is your intrinsic motivation. उसके अलावा भी देखते हैं, it is an innate or genetically predetermined disposition to behave in a particular way when he she face a particular situation. क्या है ये? genetically predetermined है. For example यहाँ पे जैसे कि भूख सबको लगता है, craving सबको होता है, hunger. So this hunger is our इंट्रिंसिक मोटिवेशन. जब भूख लगेगा ऑटोमेटिकली वी विल ईट समथिंग, या फिर कुछ बनाएंगे खाने के लिए, बिकॉज ये जेनेटिकल मोटिवेशन है. ऑलरेडी देयर इज आवर जो इंस्टिंक्ट, या फिर हम लोगों को भूख लगती है, तो भूख लगने से वो ऑटोमेटिकली हमको क्या मोटिवेट कर रहा है, टू कुक आवर फूड. तो ये ऑटोमेटिकली है इन टर्म्स ऑफ एनिमल ऑल्सो and in terms of human beings. So that's why it is also called intrinsic motivation, is also called as innate or genetically predetermined है. उसके अलावा this type of motivation can make an individual to have the feeling of self confidence and competence. जैसे कि अगर किसी का इंट्रिंसिक मोटिवेशन, अंदर से जो मोटिवेशन या फिर जो भी एक काम करने का जो जज्बा बोलते हैं, टू टेक सम एक्शन, इंस्पिरेशन लेना, अगर वो चीज एक पर्सन का अंदर से ही आता है, इंटरनल फोर्स से ही आता है, तो ऑटोमेटिकली ही विल फील सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस इनफ, बिकॉज उसको बाहर से किसी ने नहीं बोला है, फोर्स नहीं किया है, जैसे कि तुमको ये सब्जेक्ट को लर्न करना है, यू हैव टू, जैसे कि एग्जामिनेशन पास करने के लिए ये पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, ऐसा नहीं हुआ है उसके साथ. ही हैव डेवलप दैट, ही हैड जो इंटरनल फोर्स मोटिव उसको मिला है कि आई हैव टू बी एन दिस ऑफिसर, तो इस ऑफिसर बनने के लिए मुझे इस तरह से पढ़ना है, तो ये उसके लिए इंटरनल फोर्स है जो अंदर से आता है, तो वो ऑटोमेटिकली विल डेवलप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस. तो ये बोला था अकॉर्डिंग टू डेसी एंड रैन 1985 में. उसके बाद देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बोला, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स का ही. जैसे कि स्टूडेंट का ही इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड कब होगा, जैसे कि वो कैरी आउट अ टास्क बिकॉज ऑफ द एंजॉयमेंट ही शी ड्राइव्स फ्रॉम सच ए टास्क. फॉर एग्जाम्पल जो एक स्टूडेंट्स जिस सब्जेक्ट में ज्यादा इंजॉय कर रहा है, ऑटोमेटिकली ही विल डेवलप हिज इंट्रिंसिक मोटिवेशन. उसको बोलने की जरूरत नहीं है कि यू हैव टू लर्न दिस. किसी किसी स्टूडेंट्स फेवरेट सब्जेक्ट जैसे कि मैथ्स होता है, किसी का फेवरेट सब्जेक्ट साइंस होता है, तो ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है. सो अगर उसको ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप हुआ है, या फिर खेलने प्लेइंग, जैसे कि खेलना सबको पसंद है स्टूडेंट को, तो वो उसके लिए खेलना, या फिर ब्रेक जो ब्रेक वाला टाइम होगा उसके लिए वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा. किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि ये करो ये नहीं करो, तो उसके लिए दैट विल मीन्स जिस चीज में स्टूडेंट्स हो या फिर कोई भी पर्सन इंजॉयज, मीन्स जो भी काम करके उसको एंजॉयमेंट मिलता है, दैट विल बी हिज और हर इंट्रिंसिक मोटिवेशन. इन टर्म्स ऑफ डॉग ऑल्सो, जो मैंने बोला, एक कुत्ता को या फिर बिल्ली को अगर एक बोन जैसे कि हड्डी या फिर मीट दिखाया जाता है, तो ऑटोमेटिकली ही इज दैट, जो मोटिवेशन या फिर जो सेटिस्फेक्शन उसको मिलेगा वो बोन खा के या फिर मीट खा के, तो उसके लिए दैट इज हिज और हर इंट्रिंसिक मोटिवेशन. तो ये करने के लिए जरूरत एक मतलब डिफरेंस से ट्रेनिंग देने के लिए जरूरत नहीं है. इट इज ऑटोमेटिकली इननेट एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, या फिर ही कैन डेवलप बाय हिज और हर इंटरेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स ही कैन डेवलप इंट्रिंसिक मोटिवेशन. तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर डज नॉट रिक्वायर एनी प्योर लर्निंग. इट इज ऑटोमेटिकली, जो मैंने बोला, ये कुछ भी अलग से ट्रेनिंग या फिर प्योर लर्निंग की जरूरत नहीं है टू डेवलप दैट काइंड ऑफ बिहेवियर. ओके, so let us move forward into the second type, which is extrinsic motivation. So extrinsic motivation क्या होता है, जैसे कि मैंने बोला intrinsic motivation is कम internally होता है. उसी चीज को जब हम लोग बाहर से मोटिवेट करते हैं, उसी चीज को, या फिर एक पर्सन को, जैसे कि ये वाला इंटरनल इंट्रिंसिक हो गया,
ये वाला है जब हम लोग बाहर से किसी को मोटिवेट करते हैं टू डू सम एक्टिविटी और टेक सम एक्शन, देन इट कैन बी कॉल्ड एज अ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मीन्स बाहर से जो भी मोटिवेशन हमको मिलता है फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट फैक्टर, फ्रॉम आवर बिहेवियर, फ्रॉम अदर्स बिहेवियर, फ्रॉम जैसे कि किसी को हीरो वर्शिप करते हैं, कोई रोल मॉडल है तो उनको देख के जो मोटिवेशन मिलता है, या फिर किसी की बात को सुन के जो मोटिवेशन मिलता है, किसी को देख के, इन्वायरमेंट फैक्टर्स जैसे कि फादर, फैमिली में सारे ऑफिसर्स है तो ऑटोमेटिकली उसको वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन मिला है कि ही विल आल्सो बी अ, जैसे कि यूपीएससी एग्जाम देगा तो वो उसके लिए बाहर से जो मिला है दैट विल बी हिज और हर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। द इंसेंटिव्स reinforces drives and individuals behavior towards a goal। यहाँ पे मैं एग्जांपल दूंगी, जैसे कि एक स्टूडेंट्स को या फिर जैसे कि एक स्टूडेंट्स को आपने क्लासरूम में मोटिवेट करने के लिए आपने बोल दिया कि whoever will give the right answer I will give him a, जैसे कि कुछ मार्क्स दूंगी, या फिर प्री प्राइमरी क्लास में जैसे कि चॉकलेट दूंगी, इस तरह का अगर रीइंफोर्समेंट दिया तो वो क्या हुआ, वो दैट रीइंफोर्समेंट विल बी द आउटर। टू मोटिवेट हिम वी आर गिविंग सम काइंड ऑफ इंसेंटिव और रीइंफोर्समेंट। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मैंने कुछ ऐसे कंपटीशन रख दिया तो उस कंपटीशन में अगर मैंने बोल दिया कि आई विल गिव अ प्राइज मनी, या फिर कुछ भी मैं जैसे कि असाइनमेंट्स का मार्क्स दूंगी उसमें, तो ऑटोमेटिकली दैट मार्क्स or the prize money or the incentives will motivate the students to write the essay in a very बहुत ही अच्छे तरीके से लिखने को मोटिवेट करेगा। उसी चीज को मैं अगर बोलूंगी कि आज ऐसे ही कुछ ऐसे लिखो, मुझे देखना है, तो वो ऑटोमेटिकली दैट विल नॉट मोटिवेट देम। हाँ, तो एक्सटर्नल मोटिवेशन या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज समथिंग व्हिच यू हैव टू, या फिर ज्यादातर टाइम में हम लोगों को टीचर को इन द पर्सपेक्टिव टीचर और पेरेंट्स के हिसाब से, तो इन एवरी फील्ड टू मोटिवेट समथिंग, टू एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट करने के लिए वी हैव टू गिव सम काइंड ऑफ रीजन, कि रीजन देना जरूरी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक इंसेंटिव, रीइंफोर्सर, या फिर क्या एडवांटेज होगा उस काम को करके, तो ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ एक रीजंस है टू चेंज a person's behavior towards a goal। So this will be his or her extrinsic motivation होगा। उसी तरीके से students that is extrinsically motivated will execute an action in order to obtain some reward or avoid some sensation। reward का तो हम लोग समझ गए हैं, जैसे कि कुछ reward दे दिया, जैसे कि चॉकलेट दे दिया, असाइनमेंट का मार्क्स दे दिया, गुड दे दिया, वेरी गुड दे दिया, ऐसे कंपटीशन है, प्राइज मनी दिया, वो सब कुछ दैट विल बी वर्क एज अ रिवार्ड टू एक्सट्रिंसिकली मोटिवेट देम। और अवॉइडिंग सम सेंसेशन मीन्स अवॉइड, जैसे कि कुछ पनिशमेंट अगर मिलेगा वो काम नहीं करने से, तो उस पनिशमेंट से भी दे आर गेटिंग सम काइंड ऑफ मोटिवेशन। या फिर फेल हो जाएंगे, वो भी एक क्या है, टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर सेंसेशन दे गेट एक्सटर्नल मोटिवेशन। एग्जामिनेशन में पास करना है तो वो भी एक मोटिवेशन है विच इज गिविंग फ्रॉम द आउटर साइड, कि आउटर साइड से एक मोटिवेशन मिल रहा है कि फेल हो जाएंगे तो डिग्री नहीं मिलेगी, तो ये वो चीज है एक्सटर्नल या फिर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। सो मूव फॉरवर्ड विद द एग्जाम्पल, जैसे कि स्टूडेंट हु हैड रीड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन डिड सो बिकॉज ही हैव डिजायर फॉर बेटर ग्रेड। जो भी एक ग्रेड, अच्छा ग्रेड पाने के लिए सबको क्या होता है वो चीज, उसके लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, एक अच्छा ग्रेड पाना उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को इंटरनली नॉलेज ही गेन करना मेन मोटिव है, सो दैट विल बी हिज और हर इंट्रिंसिक। वही किसी बच्चे को अगर अच्छा ग्रेड पाना है, A+B+, तो उसके लिए दैट विल बी that particular subject or that particular examination will be work as a extrinsic motivation। वही में जैसे कि मैंने कोई भी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वहां पे क्या रहता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज, तो वही प्राइज क्या वर्क करता है, वही प्राइज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है उसके लिए टू रन फर्स्ट इन द स्पोर्ट्स, तो वो चीज उसके लिए एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। सो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन देने के लिए या फिर एक्सट्रिंसिक रिवार्ड जब देते हैं टीचर्स या फिर जो भी कोई भी पर्सन, इट शुड बी फॉलो, या फिर देयर शुड बी सम क्वेश्चन कि क्या दे रहे हैं बच्चों को, या फिर देयर शुड, बिकॉज कभी कभी हर वक्त जैसे कि कुछ प्राइज दे दिया, कुछ प्रेजेंट दे दिया, कुछ जैसे कि इंसेंटिव्स दे दिया, तो इट कैन sometime become very not become very useful to the students। So there should be some precautions लेना जरूरी है while giving such kind of extrinsic
रिवार्ड। सो इसीलिए उस चीज को क्वेश्चन वे में यूज करना चाहिए, बिकॉज दे हैव द पोटेंशियल फॉर डिक्रीजिंग एग्जिस्टिंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन ऑल्सो। अगर हर टाइम एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स मिलता रहेगा तो ऑटोमेटिकली जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, अंदर से जो इंटरनल फोर्स का वो मोटिवेशन कम होते जाएगा। बिकॉज सोचेगा स्टूडेंट कि मुझे तो बाहर से रिवॉर्ड्स मिल रहा है, तो वाई आई विल स्टडी, कोई रिवॉर्ड देगा तभी मैं स्टडी करूंगा, तो वो उसके लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन विल बी बिकम लेस और डिक्रीज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई इट शुड बी केप्ट इन माइंड। तो अभी हम लोग ये समझ गए हैं, तो वी हैव टू लुक आफ्टर दैट यही मोटिवेशन को टीचर्स को इन द लर्निंग प्रोसेस में, इन द क्लासरूम में किस तरह से यूज करना चाहिए। सो लेट अस सी। इट इज important फॉर द टीचर टू नो द बेसिक नीड्स ऑफ हिज स्टूडेंट्स, बिकॉज जो मैंने मेस्लो का थ्योरी के बारे में बोला, उन्होंने नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन को बेसिस में लेके मोटिवेशन को डिवाइड किया है। सो दैट्स व्हाई उसी नीड्स को देखते हुए टीचर को भी स्टूडेंट्स का बेसिक नीड्स क्या है, ही हैड टू डिफाइन कि बेसिक वो हेल्दी है कि नहीं। जैसे कि क्लास में आया है, किस तरह का कंडीशन है उसका, अटेंशन दे रहा है कि नहीं, क्यों नहीं अटेंशन दे रहा है, इन सब के बारे में भी जानना ज़रूरी हो जाता है फॉर अ टीचर्स। ठीक है। मतलब प्रॉपर रेस्ट मिल रहा है कि नहीं उसको, हेल्थ कैसा है, बिफोर टीचिंग। तो टीचर शुड लुक आफ्टर दैट नीड्स और टू मोटिवेट द स्टूडेंट। जैसे कि आपका क्लास है, उसके पहले एक क्लास में क्या हुआ, पूरे स्टूडेंट को पनिशमेंट दे दिया किसी टीचर ने, तो ऑटोमेटिकली देयर जो आप जाके फिर से मोटिवेट नहीं कर पाओगे उनको। दे नीड सम काइंड ऑफ, जैसे कि मोटिवेशन देने के लिए भी उनको टीचर को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन, वो हेल्दी है कि नहीं, रेस्ट प्रॉपर मिला है कि नहीं, तो टीचर शुड लुक आफ्टर दैट। द नेक्स्ट मोटिवेशन क्या दे सकते हैं इन द लर्निंग प्रोसेस, व्हेन द टीचर्स प्रेज हिज स्टूडेंट्स, तो फॉर डूइंग वेल इन देयर स्टडी और असाइनमेंट दे विल बी spurred टू सस्टेन दैट एफर्ट। जो भी स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट या फिर स्टडी में अगर अच्छा किया है, दे शुड प्रेज देम टू इंक्रीज देयर मोटिवेशन। किसी भी स्टूडेंट ने आंसर दिया है तो अप्रिशिएट करना जरूरी है टू डेवलप हिज हर मोटिवेशन टुवर्ड्स लर्निंग। ठीक है। देन नंबर 3 इज इन द क्लासरूम स्टूडेंट्स लाइक बीइंग रिकॉग्नाइज्ड और रेस्पेक्टेड। जैसे कि हर एक, दिस इज अ ह्यूमन नेचर, कोई भी आपको रिकॉग्नाइज करता है, जहां पे भी आप जाओगे रास्ते में, अगर किसी ने रिकॉग्नाइज किया, वी फील गुड अबाउट दैट। कोई भी स्टूडेंट ने आपको रिकॉग्नाइज किया रास्ते में, आपको भी अच्छा लगेगा। उसी तरीके से एक स्टूडेंट भी अगर क्लासरूम में हो या फिर क्लासरूम के बाहर स्कूल में, इफ अ टीचर इज ऑल्सो रिकॉग्नाइजिंग और रेस्पेक्ट दिखाया है टीचर को भी स्टूडेंट्स को भी, सो दैट विल ऑल्सो वर्क एज ए मोटिवेशन टू टू द लर्निंग। एंड वो चीज उन लोगों में क्या करेगा, मोटिवेशन पैदा करेगा इन योर क्लासरूम ऑल्सो टुवर्ड्स द लर्निंग प्रोसेस ऑल्सो। सो दैट शुड बी केप्ट इन माइंड टू ऑल द टीचर्स। उसके बाद देखते हैं नंबर 4 में क्या है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द लेसन द टीचर शुड टेल अबाउट व्हाट दे आर लाइकली टू अचीव टुडे फ्रॉम दैट लेसन और टू कैटर देयर अटेंशन। मीन्स आप जो सिखाने जा रहे हो क्लासरूम में, तो उसके पहले, क्लासरूम स्टार्ट होने से पहले, टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हो, या फिर ये जरूरी होता है जैसे कि क्लास स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वो किस वे में इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिकल लाइफ में इम्पोर्टेंट है कि नहीं, ये सब कुछ बोलना, या फिर गोल क्या है उस चैप्टर का, उस पॉइंट को उसी चैप्टर में क्यों दिया है, ये सब कुछ बोलना जरूरी है टू कैच देयर अटेंशन एंड टू मोटिवेट टू लर्न दैट पर्टिकुलर लेसन। सो इन द बिगिनिंग ऑफ द लेसन टीचर शुड कीप दिस इन माइंड। उसके बाद फीडबैक, जैसे कि मैंने पहले बोला, जो रिकॉग्नाइजेशन इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फीडबैक। रिकॉग्नाइज कर लिया, क्लासरूम के बाहर एक स्टूडेंट्स को मिले, उसको अच्छी तरह से मीन्स बात किया टीचर ने, तो उसके लिए वो एक फीडबैक भी होता है टू नो द टीचर वेल। या फिर हम बोल सकते हैं फीडबैक देना, कोई भी स्टूडेंट एक आंसर दे रहा है तो उसको करेक्ट करना चाहिए, अगर गलती हुआ है तो उसको करेक्ट इन अ प्रॉपर वे करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए उसको, तो ये सब कुछ उसमें इंटरेस्ट डेवलप करेगा। उसके बाद है द टीचर शुड ऑल्सो प्रोवाइड प्लान फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन हिज स्टूडेंट्स। एक्स्ट्रा करिकुलर मतलब जैसे कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हम लोग हर रोज क्लासरूम में करते हैं क्लास, तो आज हम लोग लैब में करेंगे क्लास, या फिर डिफरेंट फील्ड ट्रिप्स, या फिर एक्सकर्शन, या फिर साइंस डे, कुछ इस तरह का जो एक्टिविटी बेस्ड है, उस तरह का एक्स्ट्रा करिकुलर गेम स्पोर्ट्स इस तरह का ऑर्गेनाइज करना चाहिए, सो दैट दे फील मोटिवेटेड टुवर्ड्स द लर्निंग प्रोसेस, टुवर्ड्स द स्कूल ऑल्सो। देन द लास्ट वन इज the teacher should take into consideration the developmental changes and difference in the students before deciding on the particular। take into consider developmental changes, क्या consider करना पड़ेगा कि कौन से एज के लेवल को स्टूडेंट को आप सिखा रहे हो, वो जानना आपके लिए जरूरी है टू
गिव देम द प्रॉपर मोटिवेशन कि कौन से क्लास में, प्राइमरी क्लासरूम में किस तरह से मोटिवेशन करोगे, देन प्री प्राइमरी, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी लेवल में आप किस तरह से मोटिवेशन दोगे, कौन से एज के लेवल को आप स्टूडेंट्स को किस तरह से मोटिवेशन करोगे। तो वो सब कुछ भी एक टीचर को जानना जरूरी है बिफोर, जो भी आप जिस तरीके से आप मोटिवेशन दोगे बिफोर दैट। सो ऑल दिस विल come under the motivation process in the, or the motivation relation in the learning process. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ तक।